یہ جو فوٹو شوٹ کے بعد آپ نے جب پریس ٹاک کی تھی تو آپ نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کبھی کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے. تو یہ جو فوٹو شوٹ ہے اس پر بھی آپ یہی کہیں گے کہ آپ نے یہ بہت سوچ سمجھ کر کیا؟ جی بالکل. جب انہوں نے مجھے اپروچ کیا, میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے کہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا, اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وینا ملک واز ویری ہیپی, اور انہوں نے ہمیں ای میلز بھیجی تھی. وینا ملک ہیپی تھی مگر ان امیجز کے بارے میں جو ہم نے ایکچولی شوٹ کیے تھے, نہ کہ وہ امیجز جس میں انہوں نے میرے کپڑے ڈاکٹر کر دیے. ظاہری بات ہے جو امیجز میں نے شوٹ کیے تھے وہ بہت خوبصورت تھے, وہ بہت آرٹسٹک تھے, اس طرح کے نہیں تھے جن کے اوپر انہوں نے میری باڈی کے اوپر سے کپڑے بھی ریموو کر دی. آپ ہینڈ گرنیڈ کو بھی ایستھیٹیکلی بیوٹیفل کہیں گی, ہولڈنگ اے ہینڈ گرنیڈ؟ I mean, if I'm holding a hand grenade, if it goes along with the whole theme, actually جو تھیم تھا فوٹو شوٹ کا وہ ایک پورا کا پورا تھیم کے ساتھ جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو میں نے پہنا ہے ایک ہاٹ پینٹس پہنے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے ایک ٹی شرٹ پہنا ہے. اٹس اے ویری بولڈ کائنڈ آف شوٹ. اگر آپ امیجز دیکھیں جو انہوں نے مجھے بھیجے تھے, گرینیڈ, گلوز, ایکسیسریز, وہ تمام اور تمام اس تھیم کا حصہ تھے. سو ہولڈنگ اے ہینڈ گرینیڈ ان یور ہینڈ, آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ غلط چیز ہے؟ کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی گنز کو, گرینیڈز کو فوٹو شوٹس میں استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ لیکن آپ نے بھی پازیٹیوٹی کی بات کی. آئی ایس آئی کے ٹاٹو کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈ ہوگا تو کیا وہ پازیٹیوٹی ختم نہیں ہو جائے گی؟ بالکل یہی ہمارا آئیڈیا تھا کہ پازیٹیوٹی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ جب ہینڈ گرینیڈ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں لکھا ہے اٹ واز اے ویری فنی پکچر, جس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا دنیا ختم ہو جائے گی, تو اس میں بھی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہوگا. یہی آئیڈیا ایف ایچ ایم کا تھا اور اسی آئیڈیا کو لے کر کے ہم نے ایک شوٹ کیا تھا. دیٹ واز دا ہول تھیم. وینا, آپ کا جو لیگل نوٹس ہے اس میں تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے. جو بھی آپ نے کہا, آپ کا لیگل نوٹس یہ کہتا ہے کہ وہی بات جو میں نے ابھی کبیر سے بھی پوچھی کہ ٹو اے کلائنٹس نالج دیر اباؤٹ 56 انسٹیٹیوٹس ود دی ابو ایبریویشن آف آئی ایس آئی آل اوور دا ورلڈ. آپ کا یہ لیگل نوٹس یہ امپریشن دیتا ہے کہ آپ کو کلیئر نہیں تھا, کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آئی ایس آئی کے نام سے اور بھی بے شمار انسٹیٹیوٹس ہیں, انڈیا میں بھی ہوں گے اور انٹرنیشنلی بھی, اور ابھی آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ کس آئی ایس آئی کی بات ہو رہی ہے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پازیٹیو مثبت سوچ لے کے چلنا چاہ رہے تھے. بالکل جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ میں نے جب آئی ایس آئی کا آئیڈیا کبیر شرما نے مجھے دیا تو میں نے ان سے کہا کہ وائی پرٹیکولرلی آئی ایس آئی وانٹ آن مائی ہینڈ. He said, Veena ji, there are various institutes with the name of ISI, جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ISI abbreviation ورلڈ کے بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں. میں نے کبیر شرما سے پوچھا کہ ISI کے نام کا ایک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بھی ہے. کل کو اگر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ISI کا مطلب تو یہ ہے, تو یہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں شوٹ کروں, تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہم یہ بتائیں گے کہ دنیا میں کچھ بھی اگر غلط ہوتا ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہاتھ نہیں ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ان پاکستان پرابلی دے کین تھنک آف آئی ایس آئی, بٹ اٹس جسٹ آئی ایس آئی. اس کو اگر دنیا میں کوئی بھی شخص کسی طرح سے بھی لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے. دیٹ واز دا ہول آئیڈیا. آپ کو بھیجے کہ لیگل نوٹس پر نظر ڈالتے ہوئے ایک اور بات سامنے آتی ہے جس کو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے خود وینا سے یہ کہا کہ آپ کا جو فوٹو شوٹ ہے اس میں ایکسپوز زیادہ ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا آپ ایکسپوجر کم کریں انڈین سینسرشپ پالیسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور یہ انسٹرکشنز آپ کو دی گئیں. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ویڈیو شوٹ پہ بھی ان کی ٹیم نے کہا کہ نہیں ہم ویڈیو شوٹ اب مزید نہیں کر سکتے, اس کو روک دیتے ہیں. آپ نے نہیں کہا. کبیر شرما جو کہہ رہا ہے وہ بہت ہی غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ ویڈیو میں نے رکوایا تھا, ویڈیو کا کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. دیٹ واز ناٹ اے ویڈیو شوٹ, دیٹ واز اے اسٹل شوٹ. دوسری بات یہ ہے کہ کبیر شرما کی انفارمیشن کے لیے کہ آئی ہیو بین اے فیشن ماڈل فار سم ٹائم, نہ ہی میں کسی شوٹ کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں. میں نے دنیا میں شوٹس کیے ہیں, بہت سارے میگزینس کا میں کور کا حصہ رہی ہوں, اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بہت ہی غلط بات کر رہے ہیں. I was not excited, I was just calm, cool, relaxed. میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے چند دن پہلے کبیر شرما نے یہ بات ٹیلی ویژن پہ کہی تھی کہ she was composed, calm and relaxed. مطلب میرے لیے it was not a big deal, کیونکہ I was covered, I was in my limits and I was cool. وینا, آپ اپنے آپ کو پبلک فگر ہی کہیں گی نا, you're a public figure. Yes. اور یہی آپ نے اپنے اس انٹرویو میں بھی, پریس ٹاک میں بھی کہا آفٹر دی پبلشنگ آف دا پکچرز. اگر آپ پبلک فگر ہیں تو آپ کیا نہیں سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کے جذبات مجروح ہیں, لوگوں کو دکھ ہوا ہے, افسوس ہوا ہے, اور پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے؟ دیکھیے, اگر آپ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں تو ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ میں نے ایک شوٹ کیا ہے,
मगर उस शूट में मैंने कपड़े पहने थे. अगर कोई शख्स मेरी तस्वीरें में कपड़े उतार के उसको डॉक्टर करके फ्रंट पेज पे डालता है और मेरी परमिशन के बगैर डालता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों की सिंपैथीज मेरे साथ होनी चाहिए? जी ना बिल्कुल कि आप होनी लोग चाहिए. मुझे ब्लेम करें. क्यों नहीं दूसरी होनी बात चाहिए? मैं आपको बिल्कुल दूसरी आपके बात साथ मैं आपको हमारी तमाम तर हमदर्दी हैं. हमने, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए. हमने फेसबुक पर एक पोल भी रन किया, वहां पे लोगों ने क्या क्या कहा मैं वो भी आपको बता दूंगा. बात मुकम्मल कर लीजिए. जी, और उसके साथ अगर आप ये कहेंगे कि लोग हर्ट हुए हैं, तो लोग उस चीज़ से हर्ट हुए हैं जो कि एक इमेज क्रिएट हुआ है टू समहाउ. बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं कि वीना पोज्ड टॉपलेस, वीना पोज्ड न्यूड. एक जजमेंट क्यों है? क्या आप लोग ये सुनने को तैयार हैं जो मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आई वॉज नीदर टॉपलेस नॉर न्यूड? क्या ये बात कोई सुनने को तैयार है? ठीक है, एक अहम सवाल वीना. कबीर शर्मा ने तो ये कहा कि आपने उनसे टेक्स्ट मैसेज करके ये कहा कि इसको म्यूचुअली सॉर्ट आउट कर लिया जाए, जबकि आपका ये कहना है कि कबीर ने आपसे मैसेज करके ये कहा कि इस पर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, समझौता कर लेते हैं. क्या हुआ था? देखिए, कबीर का मैसेज मेरे सेल में मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. और मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि शूट होने तक उनके एक दिन में तकरीबन 20 से 25 कॉल्स आते थे पूरे टीम के. जब शूट प्रिंट हो गया तो मेरे मैनेजर से उनकी बात हुई. मेरे मैनेजर ने कहा कि क्या ये हकीकत में आपने किया है? तो उन्होंने कहा कि वो जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब चीज़ें क्लियर कर देंगे. और इसकी वजह से मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ बैठें और क्लियर करें कि हकीकत क्या थी. उन्होंने इस बात का कहा भी था. मैं नहीं चाहती थी कि ये तमाम चीज़ें मीडिया में आती. अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि हमने एक्चुअली इस तरह का शूट नहीं किया है और हम मानते हैं कि वो पिक्चर डॉक्टर्ड है, तो शायद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. दैट इज़ द ओनली रीज़न. मैंने हमेशा जब भी कोई डिस्प्यूट हुआ है हमेशा चाहा है कि चीज़ें बैठ के ख़त्म हो, ना कि मुझे कोर्ट्स में जाना पड़े. बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, सो मुझे कोर्ट में जाना पड़ा. आखिरी 2-3 अहम सवाल वीना. मुझे ये बताइए कि क्या आपने कबीर को मैसेज ये भेजा जो कि जिसको अपने लीगल नोटिस में कबीर ने कोट भी किया है कि जो मंडे 5 दिसंबर को आपने भेजा उन्हें 6:09 AM पे, और ये नोटिस सर्व आपके किए जाने के बाद है जिसमें आपने सिर्फ उनका नाम लिख के भेज दिया है कबीर? कबीर अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उनको कांटेक्ट कर रही थी शूट प्रिंट होने के बाद भी, और वो मुझसे छुप रहे थे और वो तब से लेकर काफ़ी अरसे तक छुपते रहे. मैंने पहले भी बताया है कि मैं चाहती थी कि वो म्यूचुअली बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस सिलसिले को ख़त्म करें. जो एलिगेशंस या जो भी मेरी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ा है वो अगर बैठेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा. इसके लिए मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने पहले भी बताया है कि सिंस देन आई एम बीन कांटेक्टिंग हिम एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ माई कॉल्स. शूट प्रिंट होने के बाद से वो अब तक छुपे हुए हैं. ठीक है, लेकिन उनका तो ये कहना है कि कबीर शर्मा ने अपने लीगल नोटिस में कबीर शर्मा कॉल्ड योर क्लाइंट, यानी कि आपको, और आपने फ़ोन नहीं उठाया. और ये इन्होंने 2 दिसंबर को किया था 8:59 PM पे. जी बिल्कुल, मैंने कबीर शर्मा को कांटेक्ट में करती रही थी 2-4 दिन, और ज़रूरी नहीं है कि जब भी कबीर शर्मा मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं उस वक्त अवेलेबल होंगी. उस दिन मेरा स्वयंवर का मीडिया के साथ इंटरेक्शन चल रहा था. आई कॉन्टेक्टेड हिम वेरियस टाइम्स. नहीं, उनका लीगल नोटिस ये कहता है कि 2 दिसंबर को 8:59 PM पे कबीर शर्मा ने कॉल किया आपको, लेकिन आपने कॉल पिक नहीं की. जी बिल्कुल, उसके बाद मैंने अपने मैनेजर को कहा और मैंने उनको कॉल बैक किया. उन्होंने फिर रिस्पॉन्स नहीं दिया. इट्स जस्ट दैट द टाइम ही कॉल्ड मी अप आई वाज बिजी, लेकिन उसके बाद मैंने उनको कॉल बैक किया एंड ही डिडंट पिक अप माय फोन. वीना, आप के वालिद साहब ने और पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें हाई कोर्ट में भी आपके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी कि आप पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया इसलिए क्योंकि ये सब इंडिया में हुआ. ऑन दी अदर हैंड आपके वालिद साहब ने भी लाताल्लुकी का इजहार किया है और आपसे जो उनकी बात हुई उन्होंने आपसे ये कहा कि आप अपनी इनोसेंस को प्रूव करें, क्योंकि अभी आप अनलेस प्रूवन गिल्टी आप इनोसेंट हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप अपनी इनोसेंस को प्रूव करें. तो क्या आपको अफसोस नहीं है, दुख नहीं है कि वालिद वालदा का अपने अजीज़ो कार बहन भाइयों का इतना करीबी रिश्ता होता है और वहाँ पर वो किस परेशानी में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? देखिए, जितना नुकसान मैंने बर्दाश्त किया है वो मैं जानती हूँ. ना सिर्फ मुझे सदमा हुआ है, ना सिर्फ मुझे लॉस हुआ है, जाहिर है मेरी फैमिली को भी इस बात की बहुत दे आर शॉक्ड एंड दे आर अपसेट. मैं जानती हूँ कि मेरे अबू मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जब उनसे मिलूँगी मैं उनके साथ बैठ के बात करूँगी
इट्स जस्ट दैट जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया मीडिया में चीज़ों को, वो हकीकत नहीं थी जो कि लोग समझ रहे हैं. मैं जाऊंगी, मैं बैठूंगी, मैं अपने बाप से बात करूंगी. मुझे पता है कि वो अंडरस्टैंड करेंगे. माई फैमिली इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. उसके लिए लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए टू प्रूव माई इनोसेंस एंड आई एम ऑलरेडी फाइटिंग फॉर दैट. पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी भी टेलीविज़न चैनल पर आपका ये इंटरव्यू नशर हो रहा है. आप अपने वालिद से, अपनी फैमिली से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड. आई स्पोक टू माई मदर ऑलरेडी, और मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आई लव यू गाइज. मुझे आपसे प्यार है और मैं आऊँगी, मैं बैठूँगी, आपसे बात करूँगी, और मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात समझेंगे क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं. दैट्स ऑल. और वीना, लास्ट 2 क्वेश्चंस. आप अपने इस नेगेटिव इमेज को जो अब बिग बॉस की वजह से या बिग टॉस की वजह से या इन पिक्चर्स की वजह से पाकिस्तान में है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? लोग ये कहते हैं वीना तो ये करती रहती है. हमने फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों से पूछा, उनका भी कहना है कि वीना के लिए कोई नई बात नहीं है. वीना ने इससे पहले फोटोशूट्स किए हैं इंडिया में जाके, आप देखें बिग बॉस में क्या किया. तो वीना के हवाले से कोई नई बात नहीं है ये. तो इस इमेज को कैसे ठीक करेंगे आप? मैंने कभी भी आज तक दुनिया को खुश करने की कोशिश नहीं की है. बिकॉज नो मैटर हाउ परफेक्ट यू आर, आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये मेरे इंटेंशंस हैं. मैंने ज़िंदगी में जो भी कुछ किया है, अगर कोई स्टैंड लिया है तो अपनी ज़ात के लिए लिया है, और हमेशा प्रूव किया है. अगर मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगी तो मेरे अंदर इतने गट्स हैं कि मैं खड़े होकर कहूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ. और अगर मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं करूँगी तो उसके लिए भी मैं खड़ा होना जानती हूँ कि हाँ मैंने ये नहीं किया है, मगर मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि मेरा नाम इस्तेमाल करके कोई किसी भी तरह का एडवांटेज ले. जहाँ तक बात है दुनिया की कि कौन क्या है, कौन क्या समझता है, आई एम नॉट बॉदर्ड. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने आपको सपोर्ट किया? किसी ने आपको सपोर्ट किया? दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस. सबको बहुत पसंद आई हैं सब चीज़ें, एक्सेप्ट वन पिक्चर विच इज़ ऑन द कवर, जो कि आई हैव टोल्ड एवरीबडी एंड दे नो कि दैट वाज अ डॉक्टर. सुना है कि आप ये सारी मुशावरत महेश भट्ट से ही करती नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए इस मसले का हल? महेश भट्ट साहब कॉल्ड मी अप आफ्टर एवरीथिंग, और उन्होंने मुझे कहा कि वीना जी आप बहुत डियर हैं मेरे लिए. लास्ट क्वेश्चन वीना, क्या इस मसले का अब आपको कोई हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट में नहीं, कोर्ट से बाहर. देखिए, मैंने हमेशा मैं कांटेक्ट करती रही हूँ और दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड. मैं हमेशा चाहती थी कि चीज़ें हम बैठ के सेटल डाउन करें. सिर्फ बैठ के या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे? आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? वही कि जो हकीकत थी वो पूरी दुनिया को बताई जाए, और अगर वो उस चीज़ के लिए तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ. ठीक है वीना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. Thank you very much. And all I need from my people that just wait, I will prove it wrong. Sure. Thank you so much जी. बहुत बहुत शुक्रिया जी. हमारे साथ थी वीना मलिक ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, और उनसे हमारी बात हुई, और साथ में हमने इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से उनका मौक़िफ़ भी जाना कि वो इस पूरी सूरत हाल पे क्या कहते हैं मजहबी नुक्ता नज़र से. कबीर शर्मा जो चीफ़ एडिटर हैं FHM मैगज़ीन के, जिसमें ये तस्वीर ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर शाया हुई थी वीना मलिक की, उन्होंने भी कुछ सवालात का जवाब दिया. अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है. क्या वीना कन्फेस करेंगी कि उन्होंने कर लिया? क्योंकि दोनों में से किसी एक पार्टी को तो करना होगा, किसी एक पार्टी को तो बैक ऑफ करना होगा. जैसे कि आखिर में भी वीना ने कहा कि वो चाहेंगी कि बैठकर बात हो जाए और फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो दोनों में से किसी एक पार्टी को तो पीछे एक स्टेप लेना पड़ेगा. ये बात भी सच है कि FHM मैगज़ीन पर पहले भी एक लीगल केस हो चुका है, और वो भी एक मॉडल की तरफ से था, काजल अग्रवाल की तरफ से, और ये एक दूसरा लीगल नोटिस उनको भेजा गया है जो पहले उन्होंने कहा, डिनाई किया था कबीर शर्मा ने हमारे साथ गुफ्तगू में कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, वो गलत था. लेकिन अब ये किस हद तक हकीकत है या फसाना है, टाइम विल टेल. आपके लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज हमने पेश किया था. इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया. और ये वीना मलिक का इससे पहले इस कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तानी टेलीविजन पर कोई इंटरव्यू हुआ. दिस वाज द फर्स्ट वन. होप यू हैड अ गुड टाइम. मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त, और हमारा फेसबुक पेज है आज के शो के हवाले से, और उसके अलावा भी अपना फीडबैक, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहिएगा. इंशाल्लाह की खिदमत में फिर हाजिर होंगे. अल्लाह ने के बाद.